Okay, ji, good afternoon, D18, and welcome to the second lecture of anti-Parkinson drugs. So first, I'll revise yesterday's lecture in a couple of minutes, giving you a brief overview of Parkinsonism and then anti-Parkinson drugs. In a nutshell, if you want to write down, so you can say that Parkinson's disease is basically a neurodegenerative disorder of the nigrostrial pathway and is manifested by deficiency of dopamine. Okay? Now, dopamine is supposed to inhibit GABA, and GABA is supposed to inhibit body movements. So, two inhibitions ultimately lead to normal body movements. If dopamine is decreased or is deficient inside the body, there will be an increased effect of GABA, and increased effect of GABA means increased inhibition or stopping of movements. So Parkinson's disease is characterized by akinesia, rigidity, absence of facial movement, absence of associative movements of the body. ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल गया है कि पार्किंसंस डिजीज डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो नेचुरली in order to treat Parkinsonism, we are going to increase the amount of dopamine inside the body. And in order to increase the amount of any neurotransmitter in the body, the first is always to administer the drug. हम वो ड्रग एक्सटर्नली देना शुरू कर दें. सेकेंडली, या फिर हम उस ड्रग की जैसी ड्रग्स देना शुरू कर दें, तो हम कहेंगे डोपामीन एगोनिस्ट देना शुरू कर दें, जो बॉडी में जाके बिल्कुल डोपामीन की तरह बिहेव करेंगे. उससे नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि हम बॉडी में प्रेजेंट डोपामीन की डिग्रेडेशन या उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना शुरू कर दें. If we inhibit the metabolism of dopamine, then naturally it is going to result in increased amount of dopamine inside the body. And this is exactly what we people are doing while treating a patient of Parkinsonism. So yesterday I showed you the classification of the drugs which are used in the treatment, which was here. Dopamine precursor in the form of levodopa, dopamine agonist, which are pergolide, bromocriptine, pramipexole, ropinirole. Then comes the next group, which is involved with the decreased degradation of dopamine, monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase enzyme is responsible for the metabolism of dopamine. तो अगर हम ये वाला एंजाइम देंगे तो डोपामीन का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है जी. तो वी आर गोइंग टू से कि डोपामीन की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जा रही है. एंड द ड्रग्स आर सेलिजिलीन एंड राजाजिलीन. Next is whenever the primary mechanism of metabolism of any drug is blocked, जैसे कि इस केस में हमने डोपामीन के मेटाबॉलिज्म में मोनोमाइन ऑक्सीडेज को ब्लॉक किए, the body has a tendency of developing secondary mechanisms or activating other mechanisms to carry out the same function. In case of dopamine, the secondary mechanism of metabolism is catechol O-methyl transferase pathway, जिसको हम COMT pathway कहते हैं. तो हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को इनहिबिट करने के मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को भी इनहिबिट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्ट इनहिबिटर्स नेम्ड एज इंटाकापोन एंड टोलकापोन. Next is another individual drug without any group classification, which is apomorphine. Then another drug which is an antiviral agent primarily but secondarily anti-Parkinson के तौर पे act करती है, which is amantadine. And lastly we have anticholinergic drugs. So yesterday we established कि in the deficiency of dopamine, क्योंकि GABA के ऊपर डोपामीन और एसिटाइलकोलिन पैरेलली एक्ट कर रहे होते हैं, तो जब पार्किंसंस के पैथोजेनेसिस में डोपामीन की अमाउंट कम होती है तो एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ओवरराइड कर जाता है. तो वी हैव एन ऑप्शन कि अगर हम सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं पेशेंट की, तो हम डोपामीन को बढ़ाने के साथ साथ एसिटाइलकोलिन को भी ब्लॉक कर दें, तो हम एंटीकोलिनर्जिक्स का ग्रुप भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट. Yesterday I covered the primary drug which was levodopa, and the main problem with levodopa was कि levodopa peripherally metabolize हो जाती है, यानी blood brain barrier क्रॉस करने से पहले ही gut में और blood में with the help of dopa decarboxylase which is present everywhere inside the body, it gets metabolized into dopamine. And unfortunately dopamine itself is unable to cross the blood brain barrier, तो हमारे पास levodopa की appropriate amounts CNS में नहीं पहुंचती. For that purpose, we have another additional agent with us, which is called carbidopa.
Carbidopa itself has nothing to do with dopamine receptors, बल्कि it is an inhibitor of dopa decarboxylase. क्योंकि कार्बिडोपा लीवोडोपा का आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है, you should also be able to write a short note on carbidopa as well. Carbidopa is an inhibitor of dopa decarboxylase. It is unable to cross the blood-brain barrier. It just reduces the peripheral conversion. जब मैं peripheral कह रही होती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बॉडी के अंदर किसी भी जगह बात कर रही हूँ, और जब मैं central का word यूज करती हूँ तो इसका मतलब है I am talking about central nervous system और roughly called brain. ठीक है जी? So it is acting to reduce the peripheral conversion of levodopa to dopamine. As a result, when carbidopa and levodopa are given concomitantly or are given together with each other, what happens is there is a decrease in dosage of levodopa. Naturally, जब levodopa जो है उसकी ज़्यादा amount, उसका peripheral conversion खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा amount brain में पहुँचेगी, हम कम dose देंगे. So it can decrease the dosage of levodopa. It can reduce the toxic side effects of levodopa. GIT में levodopa के जितने भी adverse effects आ रहे थे, वो reason क्या थी कि levodopa dopamine में convert हो रही थी या बाकी further metabolites में convert हो रही थी. So if we prevent the peripheral conversion of levodopa to dopamine, we can reduce the peripheral side effects of levodopa. Then thirdly, इसका benefit क्या है कि it is going to give you a shorter latency period preceding the occurrence of beneficial effects. Whenever you start giving any drug, there is a latent period basically prior to reaching the appropriate levels of that drug in the blood. जब तक blood में उसका basic threshold potential नहीं develop होता, drug की appropriate therapeutic levels नहीं आते, तब तक हमें beneficial effect नहीं मिलता. तो अगर हम कार्बिडोपा देंगे तो लीवोडोपा के appropriate level CNS में जल्दी बढ़ जाएंगे और हमें जल्दी beneficial effects जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे. So these are the advantages of using carbidopa along with levodopa. Question can be rationale of using carbidopa with levodopa, advantages of using carbidopa with levodopa, or how we can overcome the limitations of levodopa. इन सब questions का एक ही answer है. ठीक है जी? कल हम बात कर रहे थे adverse effects of levodopa के, जो हमने कल discuss कर लिए थे. So now we are going to proceed to the drug interactions of levodopa. Drug interactions में levodopa has a drug interaction with vitamin B6. Levodopa has a drug interaction with monoamine oxidase inhibitor. Whenever we say drug interaction, this means that when two drugs are given together, there is going to be some chaos. या किसी एक ड्रग ज्यादा हो जाएगा, या किसी एक ड्रग का इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, या फिर कोई एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो दोनों ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं, तो जब दो ड्रग्स इकट्ठी दी जाएंगी तो वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो बॉडी में डोमिनेट कर जाएगा. सो दैट इज द रीजन ऑफ स्टडिंग ड्रग इंटरैक्शंस. आई होप कि डेंटल सेक्शन में ड्रग इंटरैक्शंस की रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर और हाईलाइट द प्राइमरी ड्रग इंटरैक्शंस. और इसमें जो सबसे कॉमन वाला ड्रग इंटरैक्शन है वो है थेरेपी विद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. अगर आपका पेशेंट मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, नॉन सेलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो डिप्रेशन के लिए देते हैं, तो आपने उस पेशेंट में लीवोडोपा नहीं देनी, एटलीस्ट 2 वीक्स का गैप देना है और तब लीवोडोपा देनी, राइट? Next is the precautions या contraindications of levodopa. If your patient is suffering from psychosis, तो क्योंकि साइकोसिस जो है वो डोपामीन की एक्सेस की वजह से हो रहा होता है, तो अगर आप साइकोसिस के पेशेंट को लीवोडोपा दोगे या डोपामीन दे दोगे तो उसका साइकोसिस तो वर्स हो जाएगा. तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव लीवोडोपा टू अ पेशेंट ऑफ साइकोसिस. Similarly, it is contraindicated in a patient of glaucoma, क्योंकि एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के अंदर ऑलरेडी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा होता है, और अगर आप डोपामीन एक्सटर्नली दोगे तो ये नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मजीद इंक्रीज कर सकती है. सो वी हैव टू अवॉइड दैट वर्सनिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन अ पेशेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाकोमा. So it is contraindicated in glaucoma, and then it's contraindicated in a patient with active peptic ulcer disease and melanomas as well. ठीक है जी? This sums up the topic of your dopamine agonist or your levodopa. Levodopa में जो बातें आपने याद रखनी है वो उसका rationale with carbidopa है, and then you have to enumerate the adverse effects. Second group for the treatment of our Parkinson's disease was your dopamine receptor agonists. मैंने कहा
डोपामिन डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं तो हम डोपामिन लाइक ड्रग्स देंगे। डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे पास ब्रोमोक्रेटिन और रिमेंबर कि क्योंकि जो अर्गुट डेरिवेटिव there, but I'm sorry, we lost the internet connection for a while there. We were talking about dopamine receptor agonists. Or many ergot alkaloid derivatives have certain adverse effects due to which they are no more being used for Parkinsonism. तो जो चीज अब यूज नहीं होती, ये एक जनरल फॉर्मूला है फार्माकोलॉजी पढ़ने का कि वो ड्रग्स जो अब प्रैक्टिस में नहीं है हम उनके एडवर्स इफेक्ट्स पे फोकस करते हैं बिकॉज दे आर द रीजन दोज ड्रग्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। और जो ड्रग्स जब एक्टिवली प्रैक्टिस में है हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लिनिकल यूजेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, so nowadays we are going to use non-ergot alkaloid derivatives. So I skipped the bromocriptine details because that are no more important for you people. Dopamine receptor agonists have a duration tendency. They are patient liver respond नहीं कर रहा तो फिर वो डोपामिन एगोनिस्ट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा करना है और डोपामिन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल ड्रग्स में हमने जो चीजें याद रखनी है, आई इफ यू हैव योर बुक्स ओपन तो आई वुड लाइक यू पीपल टू हाईलाइट दीज इश्यूज। प्रामिट्रिक्सोल के बारे में जो चीज आपने याद रखनी है दैट इज कि ये D3 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। फार्माकोलॉजी में जब भी आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट यू शुड बी एबल टू टेल दैट व्हाट इज द रिसेप्टर द ड्रग इज गोइंग टू एक्ट ऑन। इन केस ऑफ प्रामिट्रिक्सोल डोपामिन रिसेप्टर तो है बट दिस इज D3 रिसेप्टर्स and mind you that dopamine has 5 further subtypes 1 2 3 4 5। पार्किंसंस में प्राइमरीली हम D2 को टारगेट करते हैं लेकिन प्रामिट्रिक्सोल D3 के ऊपर एक्ट करती है और आगे की स्टोरी सारे डोपामिन एगोनिस्ट की सेम होगी। रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, डोपामिन की तरह बिहेव करेगी, CNS में डोपामिन के लेवल इंक्रीज करेगी और पार्किंसंस डिजीज को क्योर करेगी। दैट्स इट। आफ्टर प्रामिट्रिक्सोल द नेक्स्ट थिंग यू पीपल, बेशक जितना इसको टू द पॉइंट रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे ज्यादा डिटेल आपने प्रामिट्रिक्सोल के बारे में याद नहीं करना। गॉड फॉरबिड यू एवर हैव अ शॉर्ट नोट टू राइट, तो आपको अगर रिसेप्टर का पता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। शॉर्ट नोट्स में यही बेसिक फीचर्स होते हैं ना, ड्रग किस चैप्टर से बिलोंग करती है, ड्रग किस ग्रुप से बिलोंग करती है, ड्रग किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है,
ड्रग का क्या पर्पस या क्या क्लिनिकल यूज है, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपको फर्दर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ड्रग इज रोपिनीरोल विच इज बेसिकली अ D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये भी डोपामिन एगोनिस्ट है लेकिन ये D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन आती है तो बाकी की सारी स्टोरी सारे डोपामिन एगोनिस्ट में सेम रहेगी। इससे ज्यादा आपने रोपिनीरोल के बारे में भी कुछ याद नहीं करना। डोंट ओवरटैक्स योर ब्रेन विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। जितना अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस करने के लिए प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। So next we proceed towards the adverse effects of your dopa agonists. All the dopamine agonists are going to have similar adverse effects. क्योंकि they are all going to behave like dopamine in the body, they are all going to have similar adverse effects just like dopamine had. ठीक है, तो आप जनरल एडवर्स इफेक्ट्स उसी तरह से कैटेगराइज करोगे जैसे आपने लीवोडोपा के केस में किए थे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके वो नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया कॉज करेंगे और पेप्टिक अल्सर्स की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगेन एरिथमोजेनिक होते हैं, एरिथमिया कॉज कर सकते हैं। हाँ, ये स्पेसिफिक एर्गोट डेरिवेटिव्स का एक है एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि एर्गोट डेरिवेटिव्स हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। तो उस स्मूथ मसल कंट्रैक्शन की वजह से पेनलेस डिजिटल वेजोस्पैज्म हो सकता है एर्गोट डेरिवेटिव्स के साथ। वैल्वुलोपैथी हो सकती है परगोलाइड के साथ। दिस कैन बी एन इंडिविजुअल MCQ अबाउट परगोलाइड। नेक्स्ट इज कि डिस्काइनेसियाज हो सकते हैं जो कि लीवोडोपा के साथ भी हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह डोपामिन एगोनिस्ट के साथ भी हो रहे हैं। CNS डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं क्योंकि CNS में जाके दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक डोपामिन। मैंने कल कहा था कि CNS में एक न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक एरिया के अंदर एक फेवरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पैरेलल किसी दूसरे एरिया के अंदर कोई वो दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। Dopamine, whereas, is going to improve the nigrostrial communication and improve the mobility of your patient. At the same time, and in another area of CNS, it is going to result in production of delusions, hallucinations, confusions, and even resorting to the psychotic features. आप नेक्स्ट वीक एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि अगर पार्किंसंस जो है वो डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था तो साइकोसिस जो है वो डोपामीन की एक्सेस की वजह से हो रहा होगा। तो अगर हमने डोपामीन सप्लीमेंट देके पार्किंसंस को इम्प्रूव किया है तो हम साइकोसिस को वर्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप पैरेलल पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। Then we come to the miscellaneous adverse effects, which include your headache, nasal congestion, pleural retroperitoneal fibrosis, CVS disorders, sleep disturbances. ये सब आपकी बुक्स में दी हुई हैं, इसमें सिर्फ आपने याद करना है। There is nothing new about all these issues. So far, any question, anyone? I assume you have no questions. Okay, fine. So, ये दोनों ग्रुप्स हमने पढ़े जो डोपामीन की एक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे थे, जो डोपामीन की तरह बिहेव कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टू ग्रुप्स व्हिच आर गोइंग टू अवॉइड द डिग्रेडेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन। रिजल्ट उसका भी सेम होगा कि बॉडी में डोपामीन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। Monoamine oxidase is an enzyme which is responsible for the degradation of catecholamines. And when I use the word catecholamines, I am talking about norepinephrine, epinephrine, serotonin, and your dopamine. However, monoamine oxidase enzyme is of two types: monoamine oxidase A and monoamine oxidase B enzyme. Monoamine oxidase A enzyme is rather non-selective in nature. When I say non-selective, I mean that monoamine oxidase A is responsible for the metabolism of norepinephrine, serotonin, dopamine, every one of them. अब हम यहाँ पर सिर्फ डोपामीन की डेफिशिएंसी से डील कर रहे हैं. We do not want to increase norepinephrine or serotonin in the body. So we are going to resolve another type of monoamine oxidase enzyme जो कि specifically dopaminergic areas में present होता है और इसको हम कहते हैं monoamine oxidase B inhibitor, which is predominantly selective for dopamine degradation, and it is present in the regions of the CNS which are rich in dopamine.
In this way, we can avoid the unwanted peripheral effect of non-selective monoamine oxidase inhibitors. Non-selective monoamine oxidase inhibitors आप पढ़ोगे डिप्रेशन के चैप्टर में, वहां पर हमें सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की जरूरत होती है. बट पार्किंसंस डिजीज में वी आर मेनली कंसर्न्ड विद डोपामीन. इनफैक्ट जब एक चीज हमारे डिजायर्ड इफेक्ट्स में नहीं आती तो उसको हम अनडिजायर्ड या साइड इफेक्ट्स कहते हैं. So in order to avoid the side effects of serotonin and norepinephrine, we are going to selectively block the monoamine oxidase responsible for dopamine, which is monoamine oxidase B. तो हाईलाइट करें अपनी बुक्स के अंदर ताकि जब MCQ आए और उसमें माओ ए और माओ बी दोनों लिखे हों तो आपको पता हो कि पार्किंसंस के केस में हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम की बात करते हैं. ऑलराइट. The names of the drugs is selegiline and razagiline. I already told you the names in your classification. After the name, as the group is self-explanatory, आपने कहना है कि this is going to block the monoamine oxidase B enzyme, which is responsible for the metabolism and degradation of dopamine, ultimately resulting in increased level of dopamine in the CNS and curing the symptoms of Parkinson's disease, which was due to dopamine deficiency. अब आ जाती हैं राजाजिलीन और सेलेजिलीन जो कि आपके माओ बी इनहिबिटर्स हैं. इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन या हम कह सकते हैं कि रादर प्रिकॉशनरी मेजर्स. तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स विद योर कोल्ड फीवर मेडिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज योर कोल्ड फ्लू एंड फीवर मेडिकेशंस कंटेन एफेड्रीन and they contain certain drugs which increase serotonin in the body. अब अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी ड्रग ले हो जो बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को इंक्रीज कर रही है, उस पेशेंट को अगर आप मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कर दोगे तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स डेंजरसली हाई हो जाएंगे, which can result into hypertensive crisis or serotonin syndrome. And in order to avoid serotonin syndrome and hypertensive crisis, we are not going to use these drugs together, right? ताकि हम additive adverse effects जो हैं उसको avoid कर सकें. This is a diagram which is, I hope, present in your Lippincott as well as your Kaizen, जो आपको exactly show कर रही है कि dopamine के साथ body में हो क्या रहा है. So if you see this diagram, this pink portion is your peripheral areas of the body. And this blue portion shows your brain. जब आप पेशेंट को लीवोडोपा देते हो तो वो आपके पेरिफेरल बॉडी के अंदर प्रेजेंट डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है. डोपामीन क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती तो वो सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर. ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने लीवोडोपा को सीएनएस में पहुंचाने के लिए इस डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कार्बिडोपा. जब कार्बिडोपा से ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो बॉडी का सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, विच इज योर कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज पाथवे. कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पेरिफेरी में लीवोडोपा को ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ यूजलेस मेटाबोलाइट जिसकी कोई क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है बल्कि सिर्फ एडवर्स इफेक्ट्स ही हैं. और यही कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज कॉमनली कॉज एज कॉम्ट एंजाइम ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी प्रेजेंट है और वहां पर वो लीवोडोपा की बजाय डोपामीन पे एक्ट कर रहा है और डोपामीन को मिथाइल टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, विच इज अगेन अ यूजलेस मेटाबोलाइट. अब जब हमने प्राइमरी मैकेनिज्म विच वाज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम उसको हमने ब्लॉक कर दिया है, इसका मतलब है कि हमने सीएनएस के अंदर डोपामीन दिया. तो मैंने पहले भी कहा है कि जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म का पाथवे ब्लॉक होता है तो बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो सेकेंडरी मैकेनिज्म्स जो हैं उसकी तरफ रिजॉर्ट करती है. तो बॉडी बी को ब्लॉक करने के बाद पाथवे जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो डोपामीन को मिथाइल टायरोसिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. सिंस हमारा एम है डोपामीन को इंक्रीज करना तो हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स क्या होगा, हमारा अगला ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम माओ बी इनहिबिटर देने के बाद कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर भी देना शुरू. सो कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स के मैंने आपको नाम क्लासिफिकेशन में बताए थे. दे वर टोल्कापोन एंड
एंटाकापोन। तो आपने टोल्कापोन और एंटाकापोन पे अगर क्वेश्चन आए तो यू आर गोइंग टू से दैट दे आर एडजंक्ट ड्रग्स, यानी वो प्राइमरीली हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते। अगर प्राइमरी ड्रग्स काम ना करें या अगर प्राइमरी ड्रग से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाए तो वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंडरी ड्रग्स कॉल्ड कैटल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स. They are going to block the peripheral as well as central metabolism of your levodopa and dopamine. Result क्या होगा? Resulting in increased amount of dopamine in the CNS and ultimately preventing or curing the symptoms of your Parkinson's disease. Again repeating, study smart. हर ड्रग के साथ उसका की फीचर मेन पॉइंट जो है वो याद करो. यूएचएस की भी बच्चे बहुत स्पेसिफिक होती है. जो मेजर पॉइंट होता है उसके मार्क्स या उसकी वेटेज ज्यादा होती है और जो माइनर बातें होती हैं उनकी पॉइंट्स उनकी मार्क्स की वेटेज कम होती है. तो अगर आप मेन पॉइंट याद कर लेते हो तो यू हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर मार्क्स इन योर एग्जाम रादर देन गोइंग फॉर डिटेल्स व्हिच आर अननेसेसरी फॉर यू पीपल. टोल्कापोन और एंटाकोपोन जो है दे हैव सर्टेन डिफरेंसेस विद ईच अदर, जिसको मैंने आपके कंफर्ट के लिए इस छोटे से टेबल में समराइज कर दिया. एंटाकोपोन हैज ओनली पेरिफेरल इफेक्ट्स, यानी ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा. दिस इज नॉट गोइंग टू ब्लॉक COMT एंजाइम इन द CNS. हाँ, ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा को ब्लॉक कर देता है तो हमें पेरिफेरी में हेल्प करता है. टोल्कापोन हैज बोथ पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल इफेक्ट्स. Entacapone is relatively less potent. Tolcapone is relatively more potent. Entacapone has shorter duration of action. अगर किसी की duration of action कम होती है तो we have to give more frequent dosages. यानी हमें almost up till 5 times a day देनी पड़ती है Entacapone. Whereas Tolcapone is more potent and it has a longer duration of action. तो हमें थोड़ी ड्रग देनी पड़ती है और दिन में कम देनी पड़ती है. We have to give less frequently, almost 3 times a day. ये जितने भी 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक इन्यूमरेट किए हैं दे आर गोइंग टू फेवर टोल्कापोन ओवर एंटाकापोन. यहाँ तक तो सारी क्वालिटीज टोल्कापोन में है. बट द हाईलाइट ऑफ द डे इज दैट टोल्कापोन इज severely hepatotoxic in nature. Being a doctor, we always have to weigh the benefits and the adverse effects of all the drugs. हमने ये डिसाइड करना होता है बिकॉज एवरी ड्रग हैज इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स. हमने सिर्फ उस क्लिनिकल सिचुएशन में ये देखना होता है कि यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं या एडवांटेजेस हमारे लिए ज्यादा सपोर्ट दे रही हैं. इन केस ऑफ टोल्कापोन हेपेटोटॉक्सिसिटी आउटवेज ऑल इट्स एडवांटेजेस. वो इतनी सवेयर होती है कि हमें इन तीनों एडवांटेजेस का कोई फायदा नहीं होता. This is the reason that in spite of all these problems, we still prefer entacapone over tolcapone because entacapone has no hepatotoxicity or it is less hepatotoxic in nature. Am I making myself clear? Any questions? Show your presence in the comment section so that I see that you people are paying attention. Let me see how many of you were listening. ओके फाइन. ये डिफरेंसेस जो हैं बेटा ये आपकी बुक्स में एज सच नहीं दिए हुए. आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड फॉर यू पीपल, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड यू कैन टेक इट. और या आप इसकी पॉइंट्स अपनी बुक पे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिकॉज ये एक छोटी सी समरी है आपके कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स की which is going to help you in your notes. Dental students, you have to prepare your own notes. जितनी भी बुक्स आपको सजेस्ट की जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर डेंटल सिलेबस. व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज कोरोना वायरस ने आपको टाइम दे दिया है. यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. फार्माकोलॉजी इज अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन और आपने उसमें से स्मार्टली अपने से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को समराइज करना है. अपनी मर्जी के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हो जो आपके डेंटल एग्जाम के लिए सफिशिएंट भी हो और रेलेवेंट भी हो, ताकि आप अंडर प्रिविलेज्ड भी ना रहें और आप ओवर नॉलेज भी गेन नहीं करें. राइट? सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग.
Well, Bilal, smileys are not going to help your question cause. If you want to ask the question, you have to be clear and precise about it. Otherwise, I'm going to proceed now. जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने कहा था कि सेकेंडरी मैकेनिज्म्स जो हैं वो बाद में एक्टिवेट होते हैं और उनका इफेक्ट कम होता है। आप इसको मैथमेटिक्स की तरह लो कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ के 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉर्मल सिनेरियोज में 100 के 100 जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो केपेबल होता है 100 के 100 मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, लेकिन जो सेकेंडरी मैकेनिज्म है उसका 100 मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट नहीं होगा, वो 10 मॉलिक्यूल्स पे 20 मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा। तो जब हम पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा असल कंसर्न जो है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज ही होता है, क्योंकि वो सारे के सारे लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा था पेरिफेरी में। जब हमने उसको इनहिबिट कर दिया तो हमने कंप्लीटली लीवोडोपा का पेरिफेरल मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म बेशक ब्लॉक नहीं किया, लेकिन हमने मैक्सिमाइज कर दी वो अमाउंट जो सीएनएस को क्रॉस कर रही है। कॉम्प जो है उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए इनिशियली पेशेंट में हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि पार्किंसंस इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, तो ओवर द इयर्स ऑफ टाइम आपकी प्राइमरी ड्रग्स जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हमें सपोर्टिव ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। आपकी बॉडी की नेचुरल डोपामीन इतनी कम हो जाती है कि जो आप एक्सटर्नली एक्सोजेनस डोपामीन दे रहे होते हो, यू वांट कि उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बॉडी में एक्ट करे। सेकेंडली, जो कॉम्प्ट का मैकेनिज्म शुरू में स्लो था वो भी ओवर द टाइम इतना ग्रो कर जाएगा कि वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए COMT इनहिबिटर्स जो हैं वो हम लेटर इन द थेरेपी यूज करते हैं, प्राइमरीली उनको हम यूज नहीं कर रहे होते, राइट? Okay. So next I'm going to talk about the individual drug which was apomorphine, which does not have any group. Apomorphine के बारे में सारी relevant information मैंने इस slide पे लिख दी है. If you people just memorize these 4-5 points about apomorphine, that is more than enough for you people. In fact, for everyone. Apomorphine is not clinically used except for very rare cases जहाँ पे हमारे पास बाकी जो drugs हैं वो बहुत helpful नहीं है। एपोमॉर्फिन की जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब इस स्लाइड में मार्क्ड हैं। ईदर यू कैन हाईलाइट देम ऑन योर बुक्स और यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम दिस स्लाइड। एपोमॉर्फिन कैन बी गिवन वाया सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर द रेस्क्यू ऑफ ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। अभी तक जितनी ड्रग्स हम पढ़ रहे थे वो सब हम ओरली दे रहे थे, एपोमॉर्फिन को हम सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि एपोमॉर्फिन हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। Yes, the effect of apomorphine begins within 10 minutes. ये प्लस है क्योंकि सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं तो ये जल्दी एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम है। इट जस्ट लास्ट फ्रॉम 10 minutes अप टिल 2 hours. थर्ड पॉइंट क्या है कि इट कॉजेज वेरी ट्रबलसम नोजिया। अब जब पेशेंट में बहुत ट्रबलसम नोजिया होता है तो वी हैव टू प्रिवेंट दिस नोजिया बाय गिविंग और ट्रीटिंग द पेशेंट विद एन एंटी इमेटिक प्रायर टू यूजिंग दिस ड्रग। ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम कहेंगे कि एपोमॉर्फिन देने की जरूरत क्या है। इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, आई टोल्ड यू कि डोपामीन हैज सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स, और उस डोपामीन या लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट्स में जो एक एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ऑन एंड ऑफ फिनोमेना में क्या हो रहा था कि जब आप डोपामीन ले रहे थे, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा वाज 1 to 3 hours, बट उन 3 आवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट की मूवमेंट बहुत स्मूथ होगी, बट एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि बीच में ऑन पीरियड्स आते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत अच्छी होती है और बीच में ऑफ पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें मूवमेंट टोटली एकाइनेसिया हो जाता है पेशेंट में और पेशेंट रिजिड हो जाता है। इस ऑन एंड ऑफ फिनोमेना की दे डू नॉट हैव अ वेरी जस्टिफाइबल पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। द ओनली एक्सप्लेनेशन दे हैव कम अप विद इज दैट देयर इज अ you can say disturbed distribution of dopamine in the brain. हम भी जो डोपामीन दे रहे हैं और जो नॉर्मल ब्रेन में डोपामीन है वो भी अपनी मर्जी से ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पल्सेटाइल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर नाइग्रोस्ट्राइल पाथवे को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोपामीन किसी एक टाइम पे नहीं मिल रही तो बीच में छोटे छोटे ऑफ पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। उन ऑफ पीरियड्स की ट्रीटमेंट के लिए
क्योंकि अगर डोपामीन नहीं है तो आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चल नहीं रही, पेशेंट चल नहीं रहा। उस ऑफ पीरियड की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम एपोमॉर्फिन यूज कर सकते हैं। आई हैवंट सीन एनीबडी यूजिंग एपोमॉर्फिन येट, बट दिस इज एन ऑप्शन, ताकि हम उस ऑफ पीरियड्स के एकाइनेसिया और रिजिडिटी को अवॉइड कर सकें। दिस इज द ओनली एमसीक्यू अबाउट एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन ऑन एंड ऑफ फिनोमेना में ऑफ पीरियड को क्योर करने के लिए यूज होता है। And this is more than enough about apomorphine, which you have to know. Next drug is amantadine. You are going to study amantadine in detail in your antiviral agents. Amantadine is primarily an antiviral drug जो कि influenza virus की treatment के लिए use होती है. But in addition to its antiviral action, it was found to improve the Parkinsonian symptoms by stimulating the release of dopamine from dopaminergic nerve terminal. मैंने अगर आप क्लासिफिकेशन देखो, आई यूजुअली emphasize that students try to learn all the drugs, effects or clinical uses in a sequence. सीक्वेंस में चीजें याद करने का फायदा ये होता है कि अगर आप चीजें भूल भी जाते हो तो जो आपने शुरू में लिस्ट डाउन की होती हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर तो मैंने क्लासिफिकेशन में अमांटाडीन को रिलेटिवली एंड में क्लासिफाई किया है, विच मीन्स कि इसका इफेक्ट है जरूर। हर वो ड्रग जो बेनिफिशियल हो सकती है इज क्लासिफाइड एज एंटी पार्किंसन, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट ड्रग एक्चुअली। वो किसी रेयर ओकेजन के लिए रिजर्व्ड होती है जब प्राइमरी ड्रग्स हमारी हेल्प नहीं कर रही होती। तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमांटाडीन इज कि जो वो बॉडी की एंडोजेनस सिक्रीशन ऑफ डोपामीन है उसको इम्प्रूव कर सकती है। बट सिंस पार्किंसंस डिजीज उस वक्त डायग्नोज होता है जब 70 to 80% ऑफ नाइट्रोस्ट्राइल पाथवे जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस टाइम पे अगर आप अमांटाडीन दोगे तो वो कितनी का डोपामीन सिक्रीशन इंप्रूव कर लेगी। दिस इज द रीजन कि ये प्राइमरीली हमारे किसी काम नहीं आती। बट स्टिल अगर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डोपामीन एगोनिस्ट नहीं है, ये कॉम्प को इनहिबिट नहीं कर रही है, ये किसी और डिग्रेडेशन पाथवे को इनहिबिट नहीं कर रही, बल्कि ये एंडोजेनस सिक्रीशन ऑफ डोपामीन को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए इतना सा पॉइंट याद रखना जरूरी है। और जो दूसरी चीज अमांटाडीन से बारे में पूछी जाती है वो आपका एडवर्स इफेक्ट का एमसीक्यू है। अमांटाडीन इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग लिविडो रेटिकुलरिस। लिविडो रेटिकुलरिस इज अ पर्पलिश ब्लू मॉटल्ड स्किन रैश। पूरी बॉडी के ऊपर एक जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरह एक नेटवर्क टाइप का होता है, पर्पलिश मॉटल्ड ब्लू रैश होता है बॉडी पे, विच इज कॉल्ड लिविडो रेटिकुलरिस। And the drug which is responsible for causing livido reticularis is your amantadine. तो अगर आपने amantadine के बारे में दो बातें याद रखनी है, तो एक आपने ये याद रखना है कि इसका मैकेनिज्म है एंडोजेनस डोपामीन की सिक्रीशन को ज्यादा करना, और इसका एडवर्स इफेक्ट प्राइमरी है लिविडो रेटिकुलरिस। क्योंकि अगर आपको कोई चीज एससीक्यूज में नहीं आती तो वो एमसीक्यूज में आ जाती है। एंड फॉर डेंटल सेक्शन वी एक्सपेक्ट कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आएंगे, एंड दीज आर टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज। तो ये दो बातें याद रखना बहुत जरूरी है। फाइन, एंड नाउ वी कम टू द वेरी लास्ट ग्रुप ऑफ योर एंटी पार्किंसन ड्रग्स। जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो उससे भी पहले हमने इंडिविजुअली कल बिल्कुल बिगिनिंग में बात की थी। एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस डायग्राम हमने बात की थी कि जो हमारे नाइग्रोस्ट्राइल पाथवे है डोपामीन का वो सिक्रीट करता है और वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके पार्किंसंस पे। नाउ व्हाट इज नॉर्मली हैपनिंग इज कि आपके कॉर्पस स्ट्राइटम से बॉडी को इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं गाबा के थ्रू। एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे दैट गाबा इज योर यूनिवर्सल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नॉर्मल सिनेरियोज में डोपामीन गाबा को इनहिबिट करती है और एसिटाइलकोलिन गाबा को प्रमोट करती है या सिक्रीट करती है। और जब ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बैलेंस में होते हैं तो गाबा की एक एप्रोप्रिएट अमाउंट एक्सक्रीट हो रही होती है जो बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही है। पार्किंसंस डिजीज में जब डोपामीन जो है वो नहीं रिलीज हो रही तो इसका मतलब है देयर इज अनचेक्ड एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी गाबा की इनहिबिशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि डोपामीन की इनहिबिशन ऑफ गाबा जो है वो ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो ज्यादा हो गया। तो अगर हमारे पास डोपामीन को ज्यादा करने वाले सारे पाथवेज ब्लॉक हो गए हैं, अगर हमारे पास वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं, ना हमारे पास लीवोडोपा है, ना हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट है,
ना हमारे पास कॉम्ट इनहिबिटर है, ना माओ इनहिबिटर है, ना ही इमेंटाडीन है। तो फिर हमारे पास आखिरी रास्ता, द लास्ट सोल्यूशन इज कि हम एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करें। इस एसिटाइलकोलिन की ब्लॉकेज से माइंड यू पार्किंसंस की पैथोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहरहाल इस गाबा के एक्शन को थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर हो जाएगा। तो द लास्ट ग्रुप ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स which are not going to cure your Parkinson, which are not going to help the pathology of Parkinson's, लेकिन ये सिम्प्टोमेटिक हेल्प जरूर प्रोड्यूस करती हैं, ये सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जरूर प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो गाबा की वजह से आ रहे थे ना, डोपामिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में गाबा के सिम्टम्स आ रहे थे। तो हम अगर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देंगे तो हम गाबा को ब्लॉक करके गाबा के सिम्टम्स को ब्लॉक कर सकते हैं। द एंटी मस्करिनिक ड्रग्स आर बेंस्ट्रोपीन, piperidine and trihexyphenidyl, and you have already studied these drugs in the classification of your anticholinergics, जो कि आप ANS में पढ़ के आए हो, जहाँ पे हमने आपको therapeutic classification of anticholinergic drugs पढ़ाए थे, and one of those therapeutic classification groups contained drugs used for Parkinsonism. So you have to remember these three names, because अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो वो anticholinergic में आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। Other than that, आपको डिटेल्स पढ़ने की यहाँ पर इसलिए जरूरत नहीं है, because we have already studied anticholinergic drugs in quite a detail in your section of your ANS. तो वही वाली सारी डिटेल्स यहाँ पर भी आ जाती हैं, right? This sums up all the therapeutic medical management of your Parkinson's disease. Now we still have certain surgical procedures which may be very helpful in improving the symptoms of your Parkinson's disease. But unfortunately, Pakistan being a third world country, we do not practice any of these surgical procedures over here. But abroad, ये सब procedures use हो रहे हैं। पता होना चाहिए एज अ डॉक्टर या एज अ ह्यूमन बीइंग, नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है कि आपको कि व्हाट अदर सर्जिकल इंटरवेंशंस कैन बी डन टू इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। तो फर्स्टली तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू सर्टेन एब्लेटिव प्रोसीजर्स, हम सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का डिजीज है, विच वॉज थैलेमस, विच वॉज ग्लोबस पैलिडस, विच वॉज योर पुटेमिन। तो आप क्या किया, कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो आप थैलेमोटमी कर सकते हो, आप पैलेडोटमी कर सकते हो, सर्जिकली जाके उन एरियाज को, उनकी डिजेनरेशन को क्योर करने की कोशिश कर सकते हो। Second method is more easy, and even some people in Pakistan are trying, which is deep brain stimulation. But deep brain stimulation is only helpful if it is done in the earlier stages of disease. जब अभी आपके डोपामिनर्जिक पाथवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बहुत ज़्यादा डीजेनरेट नहीं हुए, तो अगर हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करें विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रोड्स, तो हम बॉडी की नेचुरल नाइट्रोस्ट्रायल पाथवेज को स्टिमुलेट कर सकते हैं और उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस करें और पार्किंसंस के सिम्टम्स जो हैं उसको बेहतर कर सकें। Then we have an option of transplantation, which is very difficult, कि हम डोपामिनर्जिक सेल्स जो हैं उनको सब्सटेंशिया नाइग्रा में ट्रांसप्लांट कर दें और वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन की तरह एक्ट करें। These methods are just under trial even in the developed countries these days. ठीक है जी, so these are the surgical options. अगर आपको याद हो तो कल जब मैंने स्टार्ट करवाया था पार्किंसंस का टॉपिक, तो मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में पार्किंसनिज्म इज द प्राइमरी डिजीज, बट वी डू हैव अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स व्हिच हैव सिमिलर और ऑपोजिट इफेक्ट्स जस्ट लाइक पार्किंसंस। उन डिजीजेस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि वो रिलेटिवली रेयर है, बट फॉर द सेक ऑफ MCQ हमने उसको पढ़ना ज़रूर होता है। तो जस्ट क्विक टच डाउन ऑफ ऑल दोज डिजीजेज, और आपने सिर्फ उसकी ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है। आपको डिजीज का नाम आना चाहिए, आप उससे ड्रग ऑफ चॉइस आनी चाहिए, ठीक है। So another important movement disorder we have here is your chorea, which is almost opposite to that of your Parkinson's disease. Parkinson में क्या हो रहा था कि गाबा की इनहिबिशन जो है वो डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि डोपामीन गाबा को कंट्रोल नहीं कर रहा था, एंड द बॉडी वाज गोइंग इनटू एकाइनेसिया, एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। कोरिया में क्या हो रहा है कि गाबा की मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो गई है, गाबा इटसेल्फ जो है वो कम हो गया। जब आपका गाबा जो है वो खुद एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन नहीं हो रही। जब गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन नहीं हो रही तो उसका नेट रिजल्ट क्या है
कि डिसरिथमिक जर्की मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाएंगी बॉडी में, एंड द पेशेंट इज गोइंग टू हैव सूडो पर्पसिव मूवमेंट्स ऑफ फेस, ट्रंक और लिम्स। पेशेंट आपके सामने बैठा होगा या आपके आसपास जो उसका कोरिया से सफरिंग इंडिविजुअल है वो बैठा होगा और इनवॉलेंटरीली उसका बाजू जर्क करेगा या उसका कोई भी बॉडी का लिम्ब जर्क करेगा। अगर ये कम मसल्स को इन्वॉल्व करे तो हम कहते हैं कि टिक्स हो रहे हैं, जो आपके फेस के छोटे छोटे मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनकी डिसरिथमिक इरेगुलर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। Another subtype of chorea is your Huntington's chorea. Huntington's chorea is basically a genetic disease और उसका कॉज ये है। हम यही पाथवे अभी पार्किंसन में पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने कहा था कि पार्किंसंस में डोपामीन खत्म हो गई थी। डोपामीन खत्म होने की वजह से गाबा ज्यादा हो गया था, बट हंटिंगटन्स डिजीज में जेनेटिकली आपका गाबा खत्म हो जाता है। जब आपका गाबा खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट खत्म हो गया, आपका कंट्रोल ऑफ मूवमेंट खत्म हो गया, और जब कंट्रोल ऑफ मूवमेंट खत्म होता है तो इट रिजल्ट्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम डोपामीन को इंक्रीज कर रहे थे ताकि गाबा इनहिबिट हो। यहाँ पर अगर हम या तो गाबा को इंक्रीज करेंगे डायरेक्टली गाबा स्टिमुलेटर या गाबा सिंथेटिक ड्रग्स देकर, या फिर हम डोपामीन को ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि गाबा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रहा है हंटिंगटन्स में, तो अगर डोपामीन बॉडी में जा रही होगी तो वो तो फर्दर गाबा को इनहिबिट कर देगी। तो इसकी केस की इंप्रूवमेंट के लिए हम डोपामीन ब्लॉकर्स देते हैं, एंड दिस इज द मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। क्योंकि मूवमेंट डिसऑर्डर्स हम सारे एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर पार्किंसंस में हम डोपामीन एगोनिस्ट दे रहे हैं तो बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर्स में भी हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे, जबकि पार्किंसंस जो है वो डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, इसमें एकाइनेसिया और रिजिडिटी हो रही है। जबकि बाकी जितने भी हम डिजीजेस पढ़ते हैं जिसमें एथेटोसिस है, कोरिया है, हंटिंगटन्स डिजीज है, हेमीबिलिस्मस है, उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ज्यादा हो रही हैं। लिहाजा वहां हमने डोपामीन को ज्यादा नहीं करना बल्कि डोपामीन को ब्लॉक करना है। आपने अपने एमसीक्यू के लिए बस याद रखना है कि ये जितनी भी एडिशनल एक्स्ट्रा पिरामिडल डिजीजेस हम पढ़ेंगे इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम डोपामीन ब्लॉकर्स यूज करते हैं, और डोपामीन ब्लॉकर्स में हमारे पास प्रेजेंट हैं phenothiazines which is haloperidol. अगर आप बुक खोलोगे तो you'll see कि haloperidol is a drug of choice in most of these diseases, और उसका पर्पस क्या है कि वो डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट है, वो गाबा का डोपामिनर्जिक कंट्रोल जो है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गाबा एक्शन बॉडी में रिलेटिवली इंप्रूव हो जाता है। इज दैट क्लियर? बस ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है इन डिजीजेस के साथ, इससे ज्यादा उनकी डेप्थ में आपने नहीं जाना। हेमीबिलिस्मस में भी यही हो रहा है, राइट। एक इसमें एडिशनल है जिसको हम कहते हैं हेपेटोलेंटिकुलर डिजीज, जिसको जिसको हम विल्सन्स डिजीज कहते हैं, जो आप पैथोलॉजी में भी पढ़ोगे और जो आप आई होप कि फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, जो कि एब्नॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कॉपर डिपोजिशन हो जाती है बॉडी में। कॉपर डिपोजिशन अगर ज्यादा होगी तो विल्सन्स डिजीज होगा। इस केस में डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की बजाय हम पेनिसिलिन देते हैं, जो कि कॉपर को बॉडी से चिलेट करके एक्सक्रीट आउट करती है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट है। ये जितने भी बाकी के एक्स्ट्रा पैरामिडल डिजीजेस हैं इनकी डेप्थ में हमने नहीं जाना, सिर्फ उसकी ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है और अपने माइंड में ये पिक्चर बनानी है कि पार्किंसन इज एन एकाइनेटिक डिसऑर्डर ऑफ योर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम, whereas athetosis, chorea, hemibilismus, Huntington's disease, they are dyskinetic disorder of your extrapyramidal system. Parkinson's is characterized by absence of associative movement, and all these other diseases जिनका मैंने अभी नाम ली है, they are characterized by irregular, dysrhythmic, dyskinetic movements of the body. तो ये दोनों बातें अगर आप याद रखोगे तो उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके जहन में रहेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल कि पार्किंसंस में हम डोपामीन इंप्रूव करते हैं जबकि बाकी सारे डिजीजेस में हम डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। This sums up the topic of your anti-Parkinson's disease. I hope I made myself clear enough. If you have any questions, you can ask me in your chat box.
ओके, अमेंटाडीन रिवाइज करेंगे. अमेंटाडीन इज एन एंटीवायरल एजेंट जो कि सेकेंडरीली यूज हो सकती है पार्किंसंस डिजीज में. हमेशा याद रखना है जब भी कोई डिजीज पढ़नी है कि प्राइमरी ड्रग्स वो होती हैं जो उस ड्रग की ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं उस डिजीज की. सेकेंडरी ड्रग्स वो होती हैं या सेकेंड लाइन ड्रग्स वो होती हैं विच कैन बी यूज बट विच आर नेवर यूज एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी. जब फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हो जाए, जब फर्स्ट लाइन थेरेपी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स की तरफ आते हैं. एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स में एक ड्रग अमेंटाडीन भी है. Amantadine is therapeutically an antiviral agent which is used primarily for the treatment of influenza. However, they found out that it has improved the symptoms of Parkinson's. Yesterday, I insisted and told you that all the drugs which are recognized for the treatment of CNS disorders, most of them were found in the retrograde manner. यानी पहले उन्होंने हिट एंड ट्रायल से देखा कि सिम्टम्स इंप्रूव हुए, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली फाइंड आउट किया कि कैसे इंप्रूव हुए. यू कैन ऑलवेज से कि अगर एक पेशेंट को वायरल डिजीज के लिए अमेंटाडीन दी तो उन्होंने देखा कि अमेंटाडीन देने से उसका पार्किंसंस भी इंप्रूव हो गया. तो दे थॉट कि मे बी इसका कोई पार्किंसंस का मैकेनिज्म हो. जब उसका रूट कॉज एनालिसिस किया तो दे फाउंड आउट दैट अमेंटाडीन improves the symptom of Parkinson's disease by stimulating the release of dopamine from the dopaminergic nerve terminals already present in the nigrostriatum. जो बॉडी की अपनी डोपामीन है उसी की सिक्रीशन को ये इम्प्रूव कर रहा है. ये एक्सोजेनसली डोपामीन पर बॉडी में नहीं लेके जा रहा, ये डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर जाके खुद डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा जैसे आपके डोपामीन एगोनिस्ट कर रहे थे, बल्कि ये बॉडी की अपनी डोपामीन जो है उसकी सिक्रीशन को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी रिलीज को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी रीअपटेक को डिले कर रहा है ताकि बॉडी की अपनी डोपामीन जो है वो एक्ट करे. तो अमेंटाडीन उसी सूरत में एक्ट करेगा जब बॉडी में डोपामीन होगी. अगर बॉडी का नाइग्रोस्टाइल पाथवे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अमेंटाडीन हमारी हेल्प नहीं कर सकता. और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आपने बाकी तो याद करने हैं, लेकिन जिसके ऊपर फोकस करना है अपने एमसीक्यूज के लिए, दैट इज योर लिविडो रेटिकुलरिस. Livido reticularis is a blue purplish network like rash of the body which is characteristic feature of amantadine overdose or amantadine adverse effect. And if any one of you has watched Dr. House, a full episode of Dr. House was based on this adverse effect of amantadine, right? तो इसका मतलब है कि ये बहुत स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक है अमेंटाडीन के एडवर्स इफेक्ट्स. एनी अदर क्वेश्चन? We still have 5 minutes, so you can ask me any other question. Data as up till today's information, ग्रैंड टेस्ट जो हैं, नंबर ऑफ टेस्ट पर वीक जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं. इनिशियली हमारा नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट जो था वो 2 मई को प्लान था आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, बट अब चूंकि आपका पर वीक ग्रैंड टेस्ट डिक्रीज हो गए हैं तो आई थिंक कि वो वाला टेस्ट जो है वो मजीद 2 वीक्स आगे चला जाएगा. तो इट इज गोइंग टू फॉल समवेयर इन द मिडल ऑफ मई, बट डोंट वरी, जब टाइम आएगा तो वील अपडेट यू अबाउट इट, राइट? अभी आपका सीवीएस का ग्रैंड टेस्ट होना है, उसके बाद आपका सीएनएस का ग्रैंड टेस्ट होना है. I know that you people don't follow your teachers, but if you follow my advice, so instead of following your tests, start preparing your topics parallel to the lectures. क्योंकि सीवीएस किए हुए आपको अरसा हो गया और अगर आप उसके टेस्ट के टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो आपको सब भूल चुका होगा कि आपको क्या पढ़ाया है. तो अगर आप डेली का डेली सिर्फ 15 मिनट्स भी लेक्चर के बाद दे लो अपनी रीडिंग के लिए तो आपकी बहुत अच्छे नोट्स या प्रेपरेशन हो सकती है. ओके, हंटिंगटन्स में एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज करके यस बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है. यू आर राइट. अगर मैं आपको हंटिंगटन्स की ट्रीटमेंट पढ़ा रही होती तो मे बी उसके अंदर इसकी भी एक ग्रुप बना देते जिसमें हम एसिटाइलकोलिन इम्प्रूव कर रहे होते या कोलिनर्जिक ड्रग्स दे रहे होते. ठीक है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच. हैव फन.